نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار حضرت امام حسین علیہ السلام کو بلند کر کے فرماتے، یہ بتاتے یہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ اے لوگو، اگر اس حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے اور یہ تم سے مدد طلب کرے تو اس کا ساتھ دینا، کیونکہ جنت کے جوانوں کا سردار ہے، میرا خون ہے، میری اولاد ہے۔ مگر افسوس ہے کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو تھوڑا وقت ہی گزرا تھا کہ کربلا کے میدان میں ایک طرف لاکھوں کا مجمع تھا اور دوسری طرف وہ حسین جس کو اللہ کے رسول اپنے کندھوں پر سوار کرتے تھے۔ امام حسین اپنے نانا کی امت سے بار بار کہتے تھے، کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ کیوں میرا رستہ روکا ہے؟ اے لوگوں، پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں 3 دن سے کیوں میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے؟ کیوں 3 دن سے ان پر پانی بند کیا ہے؟ کیا میں نے رسول اللہ کی شریعت کی کوئی ترامیم کی ہے؟ کسی انسان کا حق کھایا ہے؟ کسی انسان پر ظلم کیا ہے؟ اتنے میں فوج یزید ایک آواز میں کہنے لگی، اے حسین، ہم سب تجھے تیرے بابا علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں، شہید کر رہے ہیں، تاکہ یزید ہماری جھولیاں دولت سے بھر دے۔ امام حسین نے فرمایا، اے لوگو، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہے، آج جس اسلام کا علم تمہارے ہاتھوں میں ہے اور بلند ہے، مت بھولنا میرے بابا علی نے بلند کیا تھا۔ خیبر و خندق میں اگر علی نہ ہوتے اسلام کی فتح ناممکن تھی۔ وہ علی جس نے پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کی، رسول اللہ کی حفاظت کی، حق کو بلند کیا، آج اس علی کو یہ اجر دے رہے ہو؟ اے لوگوں، بتاؤ۔ اللہ کے رسول نے بار بار میرے بابا علی کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوگا اور جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا۔ آج اس علی اور اولاد رسول کو یہ اجر دے رہے ہو۔ اتنے میں یزید کی فوج کے سپہ سالاروں نے دیکھا کہ کہیں فوج میں بغاوت نہ ہو جائے۔ اے شمر، کیا دیکھ رہے ہو؟ حملہ کرو، حملہ کرو۔ جب لاکھوں کی فوج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے پر حملہ کیا، حسین علیہ السلام نے اللہ کا نام لیا اور ذوالفقار کو نیام سے نکالا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ایک طرف لاکھوں کا مجمع اور ایک طرف 3 دن کا بھوکا پیاسا حسین ابن علی۔ زمین پر اس طرح کی جنگ پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ ایک تنہا انسان لاکھوں کے مجمع کو اس طرح فنار کر رہا تھا کہ فوج یزید واپس پلٹ کر بھاگنے لگی۔ امام فوج یزید سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، آؤ 3 دن کے بھوکے کی جنگ دیکھو، 3 دن کے پیاسے کی جنگ دیکھو، رسول کے اس نواسے کی جنگ دیکھو، اس کی جنگ دیکھو جس کا جواں بھائی مارا گیا، جس کی جواں بیٹی کو نظروں کے سامنے شہید کیا گیا، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی، جس نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے بچے کی قبر بنائی۔ امام حسین شیر کی طرح بفر کر لڑ رہے تھے۔ اتنے میں غیب سے آواز آئی، حسین
तेरा अल्लाह तुझ पर राजी हुआ, हुसैन तेरा अल्लाह तुझ पर राजी हुआ। बस इस सदा का सुनना था। इमाम हुसैन ने अपनी जुल्फकार को थाम लिया। इतने में साद कहता है, शिमर क्या देख रहा है, शिमर क्या देख रहे हो, ये अली का शेर है, इसको मात देना नामुमकिन है, इसको मात देना नामुमकिन है। जाओ खैमों को आग लगा दो, जाओ खैमों को आग लगा दो। कुछ जालिमों ने बीबियों के खैमों को आग लगा दी, कुछ जालिमों ने बीबियों के खैमों को आग लगा दी, और कुछ इमाम हुसैन को दूर से तीर मारने लगे। हुसैन कभी बीबियों के खैमे की तरफ जाते और कभी फौज की तरफ बढ़ते। उमर बिन साद और शिमर ने फौज को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जिसके पास जो चीज़ है वो दूर से हुसैन को मारे, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़ा मारा, जिसके पास तीर था वो तीर मारता था, जिसके पास बर्छी थी वो बर्छियाँ मारने लगा। तारीख ने लिखा है कि जिसके पास मारने के लिए कुछ न था उसने करबला की गर्म ज़मीन से मिट्टी उठा के इमाम हुसैन की तरफ फेंकता रहा। इमाम हुसैन के जिस्म पर हज़ारों ज़ख्म लगते रहे। आपका जिस्म मुबारक पर इतने तीर थे, जिस्म मुबारक नज़र ना आ रहे थे, जिस्म मुबारक नज़र तक ना आ रहे थे। बस जैसे ही नवासाए रसूल घोड़े की जीन से ज़मीन पर आते हैं वो यजीद झूमना शुरू कर देते हैं। लेकिन इतने में वो घोड़ा जिस पर रसूल सवारी किया करते थे वो इमाम हुसैन की चारों तरफ घूमना शुरू कर देता है ताकि इन तीरों से अपने आका हुसैन को बचा लूं। वो घोड़ा दौड़ ही रहा था। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ लोगो रुको, मैंने अपनी आंखों से देखा था इस घोड़े पर अल्लाह के रसूल सवारी करते थे। कहीं तीर इस घोड़े को न लगे, कहीं तीर इस घोड़े को न लगे। यूं तीरों को चलाना बंद किया गया। अफसोस है उन लोगों को इस घोड़े का तो एहतराम मालूम था जिस पर रसूल अल्लाह सवारी किया करते थे, मगर उस हुसैन का एहतराम भूल चुके थे जिसको अपने कंधों पर सवार करके उनको दिखाया करते थे हमारे नबी। बस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ज़मीन करबला पर अपना सर रख के अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं और यजीद के मुख्तलिफ सिपाही इमाम हुसैन का सर काटने के लिए करीब आते हैं। जो भी करीब आके इमाम हुसैन के सर को देखे उसे इमाम हुसैन के चेहरे में रसूल का चेहरा नजर आए और वो चीख कर दूर चला जाए। इतने में शिमर कहने लगा, ये काम मुझसे होना है। जैसे ही शिमर ने खंजर इमाम हुसैन के गले पर रखा वो देखे इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं। उसने सोचा हमने हुसैन का पूरा ख़ानदान कत्ल किया है, शहीद किया है। 3 दिन तक इमाम हुसैन के बच्चों को प्यासा रखा है। शायद हुसैन हमें बद्दुआ दे रहे होंगे। सुनने के लिए कान करीब किए तो क्या सुनते हैं? इमाम हुसैन अल्लाह के दरबार में अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं। ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि इस अजीम इम्तिहान के लिए तूने इस हुसैन को चुना। इतने में इमाम हुसैन ने आंखें खोली और शिमर से कहा, ऐ शिमर क्या तू नहीं जानता, ऐ शिमर क्या तू नहीं जानता मैं रसूल अल्लाह का नवासा हूँ, जन्नत का सरदार हूँ, हक पर हूँ, बेजुर्म हूँ। शिमर हाँ मुझे मालूम है। फिर आपने फरमाया तो क्यों शहीद कर रहे हो? शिमर ने कहा ताकि यजीद मेरी झोली दुनियावी दौलत से भर दे। बस ये कहते कहते शिमर
इमाम हुसैन का गला काटता रहा और फौज यजीद मुसलसल झूमती रही। इमाम हुसैन के सर कलम होने के बाद सादात को लूटा गया। इमाम हुसैन के सर मुबारक को नोके सना पर बुलंद किया गया। बीबी सकीना को तमाचे मारी गई। रसूलुल्लाह की नवासियों के सरों से चादरों को लूट लिया गया और इमाम हुसैन के जिस्म मुबारक की तौहीन करने लगे। तारीख ने लिखा है, इमाम हुसैन के जिस्म पर मौजूद जो चीज़ें थी वो लूटने लगे। इतने में एक शख्स इमाम हुसैन के जिस्म के करीब आया। इमाम हुसैन के हाथ में एक अंगूठी पहनी थी। उतारने की कोशिश की, ना उतरी। वो उंगली काट कर अंगूठी ले गया। आपके जिस्म मुबारक को रस्सियों में बांध कर करबला की गर्म रेत पर इधर से उधर दौड़ाया गया। इतने में उमर बिन साद ने कहा, ऐ शिमिर, हुसैन और उसके साथियों के लाशों का वो हश्र करते हैं, रहती दुनिया तक कोई भी यजीद के खिलाफ आवाज़ ना उठाए। इसके जिस्म से सरों को काट दो, इनके जिस्म से सरों को काट दो, सबकी लाशों को पामाल कर दो। ज़मीन करबला गवाह है कि कहीं से कोई कबीला उठकर आता है और कहता है, हम हुर की लाश को पामाल होने नहीं देंगे। उम्मे लैला का कबीला उठकर आता है और कहता है, हम अली अकबर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। कहीं रुपाब का कबीले के लोग कहते हैं, हम अली असगर का लाशा पामाल होने नहीं देंगे। एक एक शहीद की लाश पामाल होने से हटाई गई। तारीख गवाह है, सिर्फ रसूलुल्लाह का अकेला नवासा करबला की गर्म ज़मीन पर पड़ा रहा और मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ और मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते रहे। इमाम हुसैन का जिस्म पामाल होता रहा। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं, मेरा सलाम हो मेरे इस गरीब दादा पर कि जिसकी लाश को इस तरह पामाल किया गया कि उनकी दाईं पसलियाँ बाईं पसलियों में चली गईं, बाईं पसलियों की तरफ चली गईं और बाईं पसलियाँ दाईं पसलियों की तरफ चली गईं, जिनका सीना और पुश्त एक साथ हो गया। सलाम हो मेरे इस बेवतन दादा पर, दादा हुसैन पर, जिसके जिस्म मुबारक के टुकड़ों को ज़मीन करबला पर बिखेरा गया। सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो, सलाम हो।